सबकी ही लाइफ के जो 3 सबसे ज़्यादा ओवररेटेड वर्ड्स हैं ना, हुँ। वो हैं लोग क्या कहेंगे? हम ओवरबर्डन्ड हैं हुँ। और पेपर वर्क बहुत ज़्यादा इज़ इट ट्रू? Teachers themselves are also not justifying the job nowadays. हुँ, टीचिंग की जॉब को ना हम इस कदर फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हमें लगता है कि किसी को कहीं और नौकरी नहीं मिली, तो वो पढ़ाने आ गया। Nowadays the Gen Z एम्प्लॉइज़ हुँ। उनको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। क्या हर टीचर को वो सीनियर हो या जूनियर हो, उसको ट्रेनिंग लेनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एजुकेशन की बात होती है, तो क्या ही अच्छा हो अगर कोई एजुकेशनिस्ट आके आपको बताएँ कि ऑन ग्राउंड हो क्या रहा है। हम लोग खुद सिर्फ सोच सकते हैं, आप बीइंग पेरेंट्स अलग-अलग तरह की सोच रखते हैं, बीइंग टीचर्स आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी हैं और बहुत सारी क्वेश्चंस भी हैं जो आपके माइंड में होते हैं। तो आज हमारे पास एक बहुत मैं कहूँगी कि छोटी एज में ही हैं लेकिन हैं सीनियर आप लोगों के लिए। हमारे पास तशरीफ़ लाई हैं इस्लामाबाद से, उनको मेरे साथ मिलके आप सब वेलकम करेंगे और आज बहुत सारी वैल्यूएबल बातें होने वाली हैं जिससे आपको फ़ायदा होगा। सो आप stay tuned and stay connected and watch it fully. Thank you very much, Hira. थैंक हिरा तौकीर वकार, यू। जी। जर्नल मैनेजर रूट्स इंटरनेशनल स्कूल्स। क्या बात है, माशाल्लाह, इतनी छोटी एज में इतनी बड़ी अचीवमेंट। क्या ये आपका पैशन था? कैसे थोड़ा सा जर्नी अगर आप अपना शेयर करना चाहें? Thank you so much, Samina. I am feeling so happy today to be at this platform where education has been a legacy. And I've been watching your podcast contents, and I feel so happy that there is somebody on the internet who is making something really worthy of watching. And when it comes to talks about education, it is something really close to my heart, and I माशाल्लाह, feel you're doing a wonderful work. Firstly, ऑनर्ड। like to acknowledge that and appreciate that. थैंक यू सो वेरी And मच, we need थैंक यू। so many more people to come up and rise and use this platform for the training of the youth and for the leadership. And people like you, if they come up to train people like me, so we can grow at any age. Yeah, no doubt, no doubt, So, inshallah. Together we will win, inshallah. yes, inshallah. So, if I talk about my journey, currently I am working in the role of General Manager Academics at Roots International Schools and Colleges under the profound leadership of Sir Waleed Mushtaq. Okay. And gladly would also like to share that today is the 38th anniversary of our system, Roots International. माशाल्लाह, सो जी, मैं तो क्या कहना चाहिए कि बहुत सारी मुबारक थैंक यू जी, देना थैंक यू सो चाहूँगी, मच। नॉट ओनली यू बट आपके जो सीनियर्स हैं और सब आपकी सेलिब्रेशन में अरफा करीम फाउंडेशन, थैंक यू। अरफा करीम की मदद आपके साथ है। Thank you, ढेर Ji. Thank you मुबारक so लिए। very much. And previous to that, I started my journey with again, Allah has been very kind with me. I started with a huge organization, which is the Fauji Fertilizer Company. In their school, I started with being a lecturer of A levels, and my अच्छा। majors were business, economics, and accounting. Then, gradually, from the teaching and spending around a decade in that organization, I हुँ, moved towards the leadership roles in again the school because education has been something which has been the purpose of my life since the very beginning. माशाल्लाह। So I never dreamt of moving to any other industry but education. So I stayed in the education industry, served as a career counselor, joined the city school. Then I moved up till the coordination of the section, the senior section, then peeped into the early year education as well. Then gradually I moved towards the headship role and served as the school principal in the city school, and then eventually माशाल्लाह। Roots International Long, became long, my long, long destiny. introduction. Yeah. So, And right now, Hira, earlier you were talking about your early marriage. hmm, So, what was that story? Can you yeah, please? that is a very interesting story and a very unique one as well. Um, if I recall about 2 decades back, Hmm. I was just hardly 17, 18 years old when I got married. And I was O levels and A levels at that time. So after my marriage, my the entire credit it goes to my husband, that man in my life. He must be happening if he's listening to us. Yeah. Right now as well, he's there in the parking for my support. So you are Yeah. I think that you are one of the luckiest person that your husband is very supporting to you.
So Yes, just like my and husband, because if I am doing something, it's all about my husband, true. because he is so supportive till today even. Yes, you can just look at a woman's face और आपको पता चल जाता है कि कितनी ज्यादा सपोर्ट सिस्टम है इनका यू घर आर के हैप्पी और ऊपर. नॉट, आपके यस. वो जो हार्ड हो जाते हैं ना एक्सप्रेशंस, हम्म. वो टेंशन्स, परेशानियां, सपोर्ट का ना होना, वेरी ट्रू. इस वजह से। तो फिर आप बताएंगे कुछ कि आपका ये जो जर्नी है, इसमें ऑफ कोर्स चैलेंजेस, कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें नहीं होते? यस. आपके सम ऑफ 1 or 2 challenges you would like to share it with me. आई थिंक हमारी और सिर्फ हमारी नहीं, हम सबकी ही लाइफ के जो 3 सबसे ज़्यादा ओवररेटेड वर्ड्स हैं ना, हुँ। वो हैं लोग क्या कहेंगे। हुँ। ठीक है? ट्रू। इन वर्ड्स को हमने कुछ ज़्यादा ही अहमियत दे दी है। तो आई थिंक वी शुड स्टॉप फॉर वेटिंग फॉर एनी पॉजिटिव वैलिडेशन। वो बहुत ज़रूरी है टू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ एंड ट्रस्टिंग योर ओन डिसीजंस एंड योर जर्नी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। So firstly, I think ये positive judgment is the biggest challenge that we face. Secondly, being a working woman, and then after marriage, pursuing your education as well, then looking after your education, your home, along with raising 3 children. माशाल्लाह। So that becomes a wholesome task, I can understand. and which needs a whole support system from your husband, not just from the husband, but I think अल्लाह ताला की तरफ से कोई खास blessing होती है हेल्प अगर करते हैं घर में if आपकी कामों में, oh yes, हाउसहोल्ड वर्क? very graciously, and I mean, I have never seen a man like him. So was it arranged marriage or? This is a trick question. I would like to admit that it is a love marriage. Okay, that's fine. That's fine. जी. That's why he is so supportive. Yes. बहुत सारे लोग यही सोचेंगे ना कि इसमें तो फिर No, कोई no, क्यों it, ही नहीं it it करेगा। was a well decisive decision between the two of us, that, but I'm still very glad that he stayed by all those promises Very and good. he made that happen actually. ओके, तो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सो हीरा, आप बताइए, आपके हमारा एजुकेशन सिस्टम है जिसमें बहुत सारी टीचर्स जो हैं उनकी बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं। वो कहती हैं कि हम ओवरबर्डन हैं और पेपर वर्क बहुत ज्यादा। इज इट ट्रू? yes, it is true in that sense, but actually टीचिंग की जो जॉब है ना, आई थिंक वो हमने उसको वेल डिफाइन नहीं किया हुआ। एक तो हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वहाँ बड़े वेल डिफाइंड जेडीज बने होते हैं। टीचर्स के हम जेडीज पे भी उतना ज्यादा काम नहीं करते अनफॉर्चुनेटली इन द एंटायर एजुकेशन सिस्टम एंड वर्ल्ड वाइड। ये दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम आई एम लिसनिंग इट फ्रॉम यू Yeah, कि जीटी ऑफ अ because टीचर, या इट इज वेरी yeah, big. इंपॉर्टेंट, आई कैन I अंडरस्टैंड। think this is something beyond the public and private sector and beyond Pakistan. That in the sector of education, we are not, the HR system is not as strong as it exists in the corporate sector. ओके। So we are not very well in when it comes to looking after the welfare and morale of a teacher. We are not Even their doing well-being, much. nobody Yeah. is, you know, So so the concerned. education sector is not doing justice to when it comes to the HR responsibilities, when it comes to the teachers. However, I would also like to say that the teachers themselves are also not justifying the job nowadays. तो ये For so many both reasons. ways है जी, because Because teachers think कि वो जो हम 40 मिनट्स का लेसन देने जा रहे हैं शायद वही हमारा काम है, जबकि उस 40 मिनट से पहले तकरीबन 1 आवर 40 मिनट्स की प्रेपरेशन रिक्वायर्ड होती है। ओके। और फिर उस 40 मिनट्स के बाद तकरीबन 1 आवर की चेकिंग रिक्वायर्ड होती है। टीचर्स को यही तो इश्यू है कि हमें एक्स्ट्रा काम भी कहे जाते हैं, हमें हेड्स जब दिल करता है बुला लेते हैं, हमारी क्लास का कंट्रोल खत्म हो जाता है और हमें अक्सर हमें खुद एक्सपेंडिचर्स करने पड़ते हैं कि फोटो कॉपीज हैं लाइक बच्चों के लिए करवानी पड़ती हैं, या कोई ऐसा टास्किंग जो दी गई हो वो हमें बाजार जाके अपने ही पैसों से करना पड़ता है। तो ये जो सारी बातें हैं, ठीक है, मान लिया टीचर की प्रोफेशनलिज्म में, उसकी टीचिंग में, उसकी ट्रेनिंग में, वो सब ठीक है, डन। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा काम है, आपको नहीं लगता कि उनको एक्स्ट्रा एचआर को लोग ही ऐसे हायर कर लेने चाहिए जो कि इवेंट टू इवेंट, और एक कैलेंडर तो सारे साल का आपका बना होता है, तो जितने भी आपके इवेंट्स हैं उसको आउटसोर्स किया जाए, टीचर्स की जान बख्शी जाए, टीचर्स फोकस करें ऑन ओनली टीचिंग मेथोडोलॉजी, पेडागोजी एंड द कंडक्ट
their conduct, हम्म their behavior, सारा कुछ ही. हम्म It is only possible once she is relaxed, she is happy, she हम्म is satisfied. हम्म अभी ये नहीं हो रहा. ट्रू उसमें आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज द फैक्ट कि यस यहाँ पे प्रॉब्लम तो है हम्म, but the way a teacher can deal with a student even at the time of sports going on हम्म, during a football if in case कोई injury आ जाती है बच्चे को हम्म, the kind of attachment that teacher has with the student and the हम्म. teacher is going to take up that situation and take everything in command the likewise attitude we cannot expect from an outsourced event manager हाँ, डन. एक तो ये चीज एग्रीड, आ गई एग्रीड, एग्रीड. जी बिल्कुल. दूसरा इसमें ये है कि जो हमारा टीचर है ना ये हमारा बहुत ऑर्थोडॉक्स बिलीफ था कि टीचर्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एकेडमिक्स नाउ एकेडमिक्स प्ले ओनली जस्ट वन पार्ट ऑफ द एंटायर पर्सनैलिटी दैट वी इन स्कूल्स इंटेंड टू बिल्ड अप so being a teacher we should expect a teacher to deliver not just academics but far beyond that जो कि काफी कुछ स्पीच कॉम्पिटिशन्स में एक टीचर ने सिखाना है काफी कुछ स्पोर्ट्स ग्राउंड्स में सिखाना है डिबेट्स में सिखाना है सिखाना है, लेकिन So, टीचर्स का कहना है कि हम हाईली पेड तो है नहीं. नहीं वैसे हमारी जस्टिफाई मतलब उनको लगता है कि उनकी सैलरी पैकेजेस इतने नहीं हैं कि जो वो आजकल के दौर में वो कहते हैं कि हमें जो है 24 आवर्स ऑन ड्यूटी रहना पड़ता है इन ग्रुप्स इन कोऑर्डिनेशन. तो उनको लगता है कि उनकी जिंदगी आप लोगों ने खराब कर दी है. ट्रू तो इसमें एक्चुअली थोड़ा सा जो है ना वो रोल आई थिंक गवर्नमेंट को भी प्ले करना पड़ेगा देर आर हम्म, सो मेनी legislations and unions who are protecting the rights of other professionals such as lawyers doctors and like so many other people but there is no as such protection policies made for the teachers हम्म, और टीचिंग की जॉब को ना हम इस कदर फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हमें लगता है कि किसी को कहीं और नौकरी नहीं मिली तो वो पढ़ाने आ गया हाँ ऐसे ही है. जो कि किसी हद तक सच भी है यस. लेकिन सारा ही सच आपका क्या 100% ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता है है वंस यू सेलेक्ट अ पर्सन एज अ टीचर? इंटरव्यू होते हैं, डेफिनेटली कंडक्ट हम्म होते हैं, तो क्या क्राइटेरिया होता है अच्छा आपका जब आई सेलेक्ट करते सीन हैं? तो उस वक्त क्यों नहीं ये सोचा जाता? ट्रू आई थिंक उस टाइम एक तो इस चीज के लिए ट्रांसपेरेंसी रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है हम्म, कि while hiring you should make sure कि what you are going to be expecting from that teacher यस, यस. and I tell you nowadays the Gen Z employees हम्म, उनको कोई exploit नहीं कर सकता वो तो दे आर वेरी स्मार्ट. उनको अपने सारे राइट्स पता हैं वो आपको बता देते हैं कि दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू डू एंड दिस इज व्हाट आई विल नॉट डू बिल्कुल ऐसे ही है. एंड दे आर वेरी वोकल अबाउट देयर राइट्स तो वो नहीं एक्सप्लॉइट हो रहे इट्स जस्ट द मिलेनियल्स हु आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड दीस डेज यस, ट्रू. तो हमारे पास आते हैं जेनजी एम्प्लॉयज और वो तो अपने जरा से भी अपने जो उनके साथ इंटरव्यू में अग्रीड हुआ होता है उससे हटके कोई फेवर के तौर पे भी किसी के लिए काम नहीं करते हाँ, हैं वो जेनजी का ही एक तो कमेंट वो मैं पढ़ रही थी, उसमें उसने लिखा हुआ था कि टीचर ही वो इस हवाले से मैंने बात की थी जेनजी के स्टूडेंट्स कहते हैं बट इफ अ टीचर इज फ्रॉम जेनजी. मैंने कहा फिर तो रील्स और वो सारा कुछ ही देखने को मिलेगा बिल्कुल बिल्कुल कि आप लाइव जा रही हैं, आप ये अच्छा सारा आप कुछ स्प्रेड. नोटिस करें कि अब तो हम मैंने देखा है टीचर्स जो हैं वो एक सिलेबस को फॉलो कर रहे होते हैं एक हम्म, सेट करिकुलम को फॉलो कर रहे होते हैं हम्म, लेकिन हम अगर अपने टीचर्स को याद करें हम्म, वो न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल भी सुबह आता था ना तो हम्म. वो आके क्लास में हमें नॉलेज देते थे उसके बारे में यस. कि आज पता है आज दुनिया में ऐसे हो गया वो तो नहीं सोचते थे कि ये चीज मेरे जेडी में है या नहीं है हम्म, उन्होंने तो हमें अपनी जिम्मेदारी समझा हुआ था और हमारी बेहतरी के लिए अगर कोई चीज बियॉन्ड देयर सैलरी भी वो कर सकते थे हमें इम्प्रूव करने के लिए तो मेरे टीचर्स ने तो मुझे किया है लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इस वजह से भी पॉसिबल था कि उस दौर के टीचर्स को कोई एक्स्ट्रा काम नहीं थे. हम्म पहली बात, दे वर नॉट ओवरबर्डन्ड. हम्म और दूसरी बात ये है कि उस वक्त के टीचर्स सिर्फ और सिर्फ फोकस थे पर्सनालिटी बिल्डिंग के हवाले से. हम्म और उनके पास टाइम ही टाइम था. देयर वर नो फॉर्मेलिटीज, नो एक्सपेक्टेशन लेवल फ्रॉम द प्रिंसिपल. तो वो खुद हम्म ही करते थे जो कुछ करते थे. हम्म तो असल में यही बात है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें आप अगर कोई बताना चाहें कि क्या कहाँ लैग कर रहे हैं हम. एजुकेशन सिस्टम में तो आई थिंक देर आर सो मेनी थिंग्स वी कैन टॉक अपॉन कि हम कहाँ लैक कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा तो हम वैल्यूज और मोरालिटीज में यस, लैक कर रहे हैं यस, यस, ट्रू. बिकॉज हम बहुत ज्यादा एजुकेशन सेंट्रिक हो गए हैं जिसमें हम आई थिंक एजुकेशन से भी निकल के एकेडमिक सेंट्रिक हो गए हैं
हम्म एजुकेशन बहुत बड़ा टर्म है, उसमें एकेडमिक्स इज वन पार्ट ऑफ द होल एजुकेशन, उसमें यस मोरालिटीज एंड वैल्यूज दे प्ले अ वेरी बिग रोल विच इज बीइंग इग्नोर्ड दीज डेज। हम हम्म ग्रेड सेंट्रिक हो गए हैं। हम्म अब ग्रेड से क्या होता है, यू कैन प्रोड्यूस अ वेरी गुड स्टूडेंट, हम्म बट अगर आप मोरालिटीज इनकलकेट करते हैं, यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो व्हाट इज बेटर? Yeah, of चॉइस course, आस्क। a good human being. और इसमें फिर हम सब्जेक्ट सेंट्रिक हो गए हैं, हम मैथ्स इंग्लिश उर्दू तो पढ़ा रहे हैं, हम्म हम वैल्यूज और ट्रेट्स नहीं सिखा रहे, हम कॉन्फिडेंस के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उसमें कम्युनिकेशन पर्सनालिटी स्किल्स के बिल्डिंग लिए है, नहीं हाँ। कर रहे हैं, हम उसमें एम्पथी बिल्डअप नहीं कर रहे हैं, हम उसमें लव फॉर एनिमल्स नहीं बिल्टअप कर रहे हैं। ह्यूमैनिटी नहीं है बिल्कुल। एग्जैक्टली, सो हम उन सब चीजों से, हम सिविक सेंस से बाहर निकल आए हैं काफी हद तक। नहीं नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं। आई थिंक कि हम बातें तो जितनी मर्जी करते जाएं, हमारी बातें कभी खत्म नहीं होंगी, राइट? ऐसा ही है ना? ट्रू, ऐसा ही सो है। ये है कि आप एक तो ये है कि मैं आपसे थोड़े बहुत क्वेश्चंस करूंगी, हम्म। जिसका सिर्फ आपने यस और नो में जवाब देना है, और दूसरा फिर आप एंड पे अपना एक मैसेज फॉर एजुकेशनिस्ट के लिए आप छोड़ेंगी। सर, तो सबसे पहला सवाल मेरा, लेसन प्लान इम्पोर्टेंट है टीचर्स के लिए? you are asking somebody who's very strict with documentation, so I would say yes. यस, ओके फाइन। सेकंड, क्या टीचर्स ओवरबर्डन्ड है? I would say no. I know this is going to bring a lot सुन of ले मैंने criticism. मैंने आपके लिए सवाल पूछ लिए है, अभी आप देख लें कि क्या जवाब मिल रहा है। I think they need to plan meticulously. हम्म So they are not overburdened, they are just misaligned. क्या स्टिल फेवरेटिज्म काम करता है स्कूल्स में? Yes, this I will agree, although this is very tricky question again, but I will agree, yes. यू जस्ट हैव टू से यस और नो। अच्छा, क्या सिर्फ अच्छे ग्रेड ही एक बच्चे की सक्सेस की गारंटी देते हैं? No, नो। ओके, टीचर के लिए स्ट्रिक्ट होना एक अच्छी बात है। no. ओके, जो स्ट्रिक्ट होती है ना टीचर, सुन लें, नो का जवाब आया। क्या हर टीचर को, वो सीनियर हो या जूनियर हो, उसको ट्रेनिंग लेनी चाहिए? Yes, yes. यस, इसलिए जो आप समझते हैं ना कि आपको आगे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ये मैं नहीं, वो कह रही हैं। टेक्नोलॉजी क्या टेक्नोलॉजी अपना रोल प्ले कर रही है एजुकेशन को बेहतर करने के लिए? टेक्नोलॉजी को रोल प्ले करना चाहिए चाहिए, जी, अभी नहीं कर रही, अभी मतलब उस नो तरह कह नहीं सकती करी। हैं आप। यस, नो। ओके, उसके बाद आप ये बताइए कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट, ईक्यू और आईक्यू? EQ। आईक्यू, ठीक हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद आप मुझे ये बताइए, आप एक कैसी टीचर थी जब आप टीचर थी? Oh my God. This is a very interesting question. I was a teacher who used to ensure perfection in my यू आर class. परफेक्शनिस्ट, राइट? Yes, I was, I mean, ओनली इन एजुकेशन और इन एवरी फील्ड? in most of the areas, but in education, मेरे लिए बहुत, I'm very particular about ओके when education ओके, comes, you know, and तो even विच टाइप ऑफ टीचर I was a यू आर? teacher who used to ensure that everything is documented, it is neatly placed, it is well aligned, well planned. The ओके, activities are planned. I should be knowing what am I going to teach today, and the students should be knowing as well. There should be very transparent and clear communication between the student and teacher. The relationship should, the relationship between the two should be extremely cordial, because अगर टीचिंग जो है वो कम्युनिकेशन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। अगर मेरा और मेरे स्टूडेंट का रिलेशनशिप ही अच्छा नहीं है, तो तो उसको टीचर्स का मेरी कहना बात ये है नहीं कि समझ लेसन प्लान आएगी। में जितनी मर्जी तैयारी कर लें, जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है तो वो सिनेरियो ही डिफरेंट होता है यस, दैट क्लासरूम इज अ में। सैड रियलिटी। उस लेसन प्लान का कोई फायदा नहीं है अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। हम्म लेकिन और एग्जीक्यूशन अगर लेसन प्लान से बैक्ड अप नहीं होगी, तो उस एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। हम्म सो अगर दोनों चीजें हैंड इन हैंड काम तो इसका करें, क्या हल है तो हमारे हम पास वैसे? आई सोल्यूशन क्या है इसका? इसका सोल्यूशन मैं आपको देती हूँ। यूज एआई। ओके, डोंट यूज एआई विद एन इंटेंशन कि मैं जल्दी जल्दी लेसन प्लान बनवा लूं, उनको देखूं भी ना, पढ़ूं भी ना, और प्रिंसिपल के ऑफिस में सबमिट करा दूं फॉर द सेक ऑफ जस्ट फुलफिलिंग माय फॉर्मेलिटी, केपीआईज। हाँ।
फिर एआई का फ़ायदा नहीं है। बट अगर आप एआई यूज़ करके लेसन प्लान बना रहे हैं और एआई से पूछ रहे हैं, आज मेरा ये टॉपिक है, बताओ मैं स्टूडेंट्स को क्या-क्या एग्ज़ाम्पल्स देकर आऊँ? हुँ, बताओ मैं और स्टूडेंट्स को कैसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराऊँ? तो एआई जो आपको एग्ज़ाम्पल्स देगा एंड इफ यू आर एबल टू एग्ज़ीक्यूट दोज़ हुँ, एक्टिविटीज़ इन योर क्लास, हुँ। देन यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। और वेरी लेसन गुड प्लान में सजेशन। टाइम भी नहीं लगेगा और अगर आप वही चीज़ क्लास में एग्ज़ीक्यूट करते हैं, यू आर गोइंग टू हैव एन एंगेजिंग क्लास विद द तो नॉटी स्टूडेंट्स। नॉटी बच्चों को जो डील करने के लिए एआई क्या सजेशन देता है? पूछे ना एआई से, एआई इतने ज़बरदस्त सजेशंस देता है। मैं तो पूछती हूँ एआई से। सो हीरा, थैंक यू वेरी मच। थैंक और यू। मैं चाहूँगी कि व्हेनेवर you are again in Lahore, so we can have another podcast because this is a topic where we cannot stop. यस, यस। So I थैंक need यू। to know more things, but time is less now. और if you want to say something to the audience, जो टीचर्स आपको सुन रहे हैं, प्रिंसिपल, जो भी एजुकेशन, if you want to say something, you can see in that camera and please deliver your message. I think discipline is very important to make anything to align with consistency, that is aligned with consistency and backed up with discipline and is supported with integrity and honesty. I think it can lead you to the path and to the dreams that you can think of, and it can make every task accomplished. और फिर आप ये नहीं कहेंगे कि यू आर ओवरबर्डन्ड और या फिर ये इतने टाइम में मैनेज नहीं होता। I think it is just about bringing discipline in our daily routines, and it can cause a lot of accomplishments that we can think of. Thank you. थैंक यू वेरी मच हीरा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम सून। Thank you. और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। जितनी बातें मैक्सिमम हो सकी हैं हमने की हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम भी कोई और एजुकेशनिस्ट आपके सामने ला के बिठाऊँगी ताकि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसको समझने में आपको आसानी हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्दी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।